क्रिप्टो मार्केट इज डंपिंग, क्रिप्टो मार्केट इज क्रैशिंग, लेकिन आप हड़बड़ाइए मत। अगर आप क्रिप्टो चैनल में न्यू हैं और क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड हर एक न्यूज़ मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी ट्रंप ने यूएस स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइन के लिए लेके आने के बाद भी क्यों क्रिप्टो मार्केट डम हो रहा है? अभी भी हम लोग को क्रिप्टो का प्राइस बिटकॉइन का प्राइस क्यों हम लोग को $90,000 से भी नीचे देखने को मिल रहा है? आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अभी मार्केट में फट का माहौल है। मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो सस्ते में भी क्रिप्टो यानी बिटकॉइन और अदर ऑल्ट कॉइन उठा सके। तो मेन खबर निकल के आ रही है कि हमारे जो रेचल मैडो हैं वो एक दिग्गज इंसान है, वो फर्ड फैला रही हैं कि क्रिप्टो का कोई वैल्यू नहीं है, क्रिप्टो एक स्कैम है, एक ओल्ड फैशन स्कैम है। आप सुनिए उनके मुंह से। By no means a crypto expert. I'm not going to give you a lecture on blockchain or meme coins or any of that. I don't know, and B, I don't care. But I do think it's worth looking at this crypto thing a little bit, only because it is a deeply, deeply old-fashioned, simple scam at this point, which points right to the White House. बोला वो फर्ड फैला रही हैं कि क्रिप्टो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि इनको क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है। इनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है कि क्रिप्टो है क्या, क्या डिसेंट्रलाइजेशन है, क्या बिटकॉइन है और क्यों बिटकॉइन नेसेसरी है ह्यूमन काइंड के लिए। तो इनके बात पे कोई उतना वैल्यू नहीं करता, बस थोड़ा डर का माहौल हुआ, पैनिक सेलिंग हुई, इसलिए हम लोग देख सकते हैं मार्केट में प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा डाउन है। अगर आप उनका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक्स पे जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर सेल योर बिटकॉइन बाय द डिप, हमेशा। चलिए आगे चलते हैं। तो खबर आ रही है जैसे रेचल माउ ने बोला कि बिटकॉइन एक स्कैम है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन स्कैम नहीं, बिटकॉइन बबल में बिटकॉइन पिन है। इन्होंने समझाया कि बबल कैसे काम करता है, एक स्कैम कैसे होता है और एक रियल वैल्यू कैसे क्रिएट होता है मार्केट में। आप सुनिए इनके मुंह से। Ladies and gentlemen, bubbles have three characteristics. They tend to be a single cycle boom, then bust, relatively short in duration, and crash back down to the baseline, which is either zero or the inflation adjusted place of where they were before the boom. The Dutch tulip mania was like this. So was the housing bubble. So was the dot-com bubble. And so was pretty much every other bubble ever. So what about Bitcoin? Well, Bitcoin, it's actually hard to see the price cycles because it's increased such radically in value over time. So we're going to use a logarithmic scale to look at what it looks like on a price cycle where you go from $0 to $1, then to $10, 100. It's called the logarithmic scale, which is often used for assets with this level of upside. So in the first price cycle, Bitcoin went from about 5 cents up to $32, back to $2. Now, if we were having this debate in 2011, you could be forgiven for believing it met two of the three criteria of a bubble, except that it landed at a price that was 40 times as high as the 5 cents that it started at. What happened next? It didn't go to zero, it went up to $1,200, came back to 92, meeting now none of the criteria of a bubble. Then what did it do? Well, it zoomed up to $19,000, down to $3,200, meeting, once again, none of the criteria of a bubble, 35 times the previous low price. Then it zoomed up to $69,000, down to $15,000, once again meeting none of the criteria of any historical bubble we have ever seen. Bubbles look like the bottom left of this chart. They do not look like the orange line. So what does look like that orange line? Well, it turns out every high value asset that has ever become a $1 trillion industry or asset looks just like that on a logarithmic chart. Apple, Amazon, Netflix, even gold, when you zoom out, goes through the same pattern. And all of these assets do it for the same reason. The marketplace is trying to figure out how big of a deal is this asset, how big of a deal is this industry, and what role will this commodity, technology, or company impact in the global world. Bitcoin's doing the same thing. तो जैसा मैंने बोला, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बबल क्या होता है। बबल एक ऐसा होता है कि जहाँ पे प्राइस रेंज आपको ऊपर जाता है, उसके बाद दिखते ही पैनिक सेलिंग होती है और
प्राइजेस डंप होता है। बेसिकली हम लोग बबल को एक मीम कॉइन की तरह देख सकते हैं कि जहां मार्केट में स्पेकुलेटर्स लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमाने के बाद डंप कर देते हैं। लेकिन बिटकॉइन कोई बबल नहीं है। बिटकॉइन ने हर एक क्राइटेरिया मीट किया है जहां पे प्राइजेस रेंज बहुत ऊपर जाने के बाद गिरता है। बस प्योर हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई समझना पड़ा। जितने भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं आपको अमेज़न, नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी हैं वो सब ने क्राइटेरिया देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर जाता है और नीचे आने के बाद फिर एक प्राइस रेंज ऊपर जाता है। अमेज़न, नेटफ्लिक्स, इवन एप्पल का भी आपने एक्सप्लेन किया। तो जैसे मैंने बोलता हूँ बाय द डिप ऑलवेज होल्ड और बिटकॉइन इज द अल्टीमेट मनी। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं। सो डेविड सैक्स बोल रहे हैं हमारे कि यूएस गवर्नमेंट क्रिप्टो होल्डिंग विल बी ऑडिटेड, कि वो लोग फाइंड करेंगे कि कितना डिजिटल एसेट उनके मतलब यूएसए के पास एक्चुअली यूएसए होल्ड करता है। सो अब ऑडिट होने वाला है, प्रॉपर एक न्यूज़ आने वाली है। सो आप चैनल में बने रहिए और एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला डेविड सैक्स बता रहे हैं कि बिटकॉइन क्यों फ्यूचर है। बिटकॉइन व्हाई इज द बिटकॉइन द फ्यूचर ऑफ करेंसी, तो सुनिए आप उनके मुंह से। The thing that like all these like critics don't seem to understand is the technology. That's the common denominator. Whether Sure. it's like Howard Marks or Warren Buffett or Charlie Munger, whoever, they're all like great investors or whatever, but they're not technologists. It's a blind spot, yeah. It's a blind spot. And the thing they don't understand about the technology is that Bitcoin is the first digital asset to ever be created that you can't create infinite copies of, right? So think about like a song or a photo or a video or whatever, anything that's digital. You've always been able to make an infinite number of copies. Isn't that what the word digital means? Is that it's infinitely copyable. So how do you have digital money that can't just be infinitely copied? Obviously that would destroy the value. And that was the genius of Bitcoin, is that every transaction is written into this ledger. The blockchain is decentralized, and nobody over the last decade or so has figured out how to counterfeit Bitcoin, how to make a duplicate, how to double spend Bitcoin. मैंने बोला, इन्होंने बताया कि बिटकॉइन का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिटकॉइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, बिटकॉइन को कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता है। बिटकॉइन इज द अल्टीमेट मनी, ये बता रहे हैं डेविड सैक्स, जो हमारे यूएस के एआई और क्रिप्टोजार हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि क्यों बिटकॉइन ऐसा ही है। आगे चलते हैं। माइकल सेलर बोल रहे हैं कि यूएस बिटकॉइन रिजर्व हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट 16 to 81 ट्रिलियन इन वेल्थ बाय 2045। तो यूएस का जो डेप्ट है हमारा $36 ट्रिलियन का, तो उसको ही हटाने के लिए ये सबमिट हुआ। और कैसे बिटकॉइन रिजर्व बनेगा कि आगे जाके जितना भी यूएस का जो डेप्ट है उसको क्लियर करेंगे हम बिटकॉइन की तरफ से। वही बोल रहे थे माइकल सेलर कि बिटकॉइन जो वेल्थ क्रिएट करेगा 2045 तक, वहाँ पे 16 to 81 ट्रिलियन तक का होगा। तो आप देख सकते हैं कितना वैल्यूएबल है बिटकॉइन। तो ऑलवेज स्टैक्स बिटकॉइन। आगे चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक्सआरपी की तरफ से कि ब्रैड गैर्लिंग हाउस बोल रहे हैं कि 10 ट्रिलियन जितना पैसा मार्केट में आने वाला है एक्सआरपी के तरफ। एक्सआरपी में इन्वेस्ट होगा, जहां पे आपको प्राइजेस रेंज $178 का दिखेगा एक्सआरपी। इसका वैल्यू अभी $1 चल रहा है। आई डोंट नो क्या होगा एक्सआरपी का वैल्यू, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और मीडिएटर हैं, इनको एक्सआरपी का इशू करने के लिए मीडिएटर है ब्रैड गैर्लिंग हाउस, एक टीम है। मैं बोलता हूँ कभी भी ऑल्ट कॉइन्स पे उतना ज़्यादा भरोसा मत करिए, प्रॉफिट बुक करिए और एग्जिट करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बाई ओनली बिटकॉइन। आगे चलते हैं। एक खबर निकल के आ रही है कि बिटकॉइन अपना हाई दिखाएगा जून पे। एक मार्केट साइकिल होता है जहां पे एक टाइम पीरियड पे एक बिटकॉइन अपना टॉप करता है। तो देख सकते हैं आई थिंक इस टाइम जून या जुलाई पे मार्केट टॉप करेगा। लेट्स सी क्या होता है। और एक खबर निकल के आ रही है कि सोलाना पे $485 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला, इसीलिए थोड़ा पैनिक सेलिंग होके जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सोलाना बेच के। आगे चलते हैं। एक खबर निकल के आ रही है इथेरियम की तरफ से कि फ्यूचर ऑफ इथेरियम स्केलिंग लाइज इन हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर। तो बोलते हैं जितना भी आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें, लेकिन हमेशा जब हार्डवेयर मजबूत नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। सॉफ्टवेयर मजबूत होने के बाद भी हार्डवेयर इज द मेन थिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड हर एक न्यूज़ मिलता रहे टाइम टू टाइम। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।